Namaskar. Namaskar. A very good afternoon to all the esteemed guests, faculty, staff, and students. On behalf of All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur, we extend a very warm welcome to all gathered here. We would like to welcome our esteemed dignitaries with a floral welcome and a traditional safa. May I request Dr. Vijay Lakshmi Nag to present a bouquet and Dr. Sanjeev Mishra to honor Sri J.P. Nadaji with a traditional safa. Thank you, sir. May I request Dr. Sneha Ambwani to present a bouquet and Dr. Praveen Sharma to honor Sri Rajendra Rathod ji with a traditional safa. Dr. Bhatia, sir. Yeah, three. He said three. Please, sir. Thank you, sir. May I request Dr. Pankaja Raghav to present a bouquet and Dr. Praveen Sharma to honor Sri Gajendra Singh Khimsar ji with a traditional safa. Yes, bouquet. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I request Dr. Pratibha Singh to present a bouquet to Sri Narayan Lal Pancharya ji. Thank you, ma'am. May I request Dr. Bharti Mehta to present a bouquet to honor Sri Gajendra Singh Shekhawat ji. Thank you, ma'am. May I request Dr. Shilpi Gupta Dikshit to present a bouquet to honor Dr. Manoj Rajoria ji. Thank you, ma'am. May I request Dr. Ankita Chuk to present a bouquet to honor Sri Ram Narayan Dudi ji. Thank you, ma'am. Madam. May I request Dr. Purvi Purohit to present a bouquet to our Honorable Sri Ghansham Oja ji, Mayor Jodhpur. May I request Dr. Daisy Khera to present a bouquet to Sri Jaswant Singh Bishnoi ji. May I request, thank you, ma'am. May I request Dr. Shilpi Gupta Dikshit to present a bouquet to Sri Sunil Sharma ji. Thank you, ma'am. May I request thank you, ma'am. May I request Dr. Purvi Purohit to present a bouquet to honor Dr. Sanjeev Mishra, sir. May I please request Dr. Daisy to present a bouquet to Honorable Member of Parliament, Sri P.P. Chaudhary ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The light of knowledge dispels the darkness of ignorance. Continuing with our Indian tradition, we request the dignitaries on the dais to please proceed for the lighting of lamp. Thank you. To invoke the blessings of Ma Saraswati, our students will be reciting the Saraswati Vandana.
या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रदविधि देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम्बः शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्रां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यान्धकाराम्बहा हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् May we request Dr. Sanjeev Mishra, sir, Director AIMS Jodhpur, to deliver his welcome address. Good afternoon. Honorable Shri J.P. Nadda ji, Minister of Health and Family Welfare, Government of India, and President of AIMS Jodhpur, Shri Rajendra Rathore ji, Honorable Minister for Medical, Health and Family Welfare, Government of Rajasthan, Shri Gajendra Singh Khimsar ji, Honorable Minister for Industries, Government of Rajasthan, Dr. Manoj Rajoria, Honorable Member of Parliament, Member Institute Body, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Member of Parliament, Member Institute Body, and Honorable Members of Parliament, Shri Ram Narayan Dudi ji, Shri Narayan Lal Pancharia ji, Shri P.P. Chaudhary ji, and Honorable Mr. Jaswant Singh Bishnoi ji, and the Honorable Mayor Ojasa. Distinguished guests, faculty members, administrative staff, dear students, friends from the press, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you on the occasion of the inauguration of the Central Laboratory Block, Blood Bank, Physical Medicine and Rehabilitation Block, and the online inventory of the blood bank and the computerized patient management system of the All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur. It is a historical moment for AIMS Jodhpur to have our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Shri Nadda ji, at Jodhpur, who has taken time out from his busy schedule to grace the occasion. I would begin by congratulating him on assuming the charge of the President of the World Health Assembly of the World Health Organization at Geneva. AIMS Jodhpur is one of the 6 new AIMS established under the PMSY scheme and granted status of an institution of national importance. AIMS Jodhpur has been set up by an act of the Parliament on the lines of AIMS New Delhi to impart both undergraduate and postgraduate medical education in all its branches and related fields, along with nursing and paramedical training, to bring together in one place educational facilities of the highest order for training of personnel and patient care. With the mission of a Center of Excellence in Medical Education, Training, Research and Patient Care, we began our journey on 17 September 2012 with the first batch of 50 bright young MBBS students joining. Since then, 2 more batches of 100 students have joined this institute. The College of Nursing has been imparting education to 2 batches of 60 students each. Our talented and bright faculty and staff have been doing their best to impart quality medical education and training using innovative methods and also provide a congenial environment to the students who come from different parts of the country and varied walks of life.
AIIMS Jodhpur has also been designated as a Center for Research in Medical Education by the National Academy of Medical Sciences, New Delhi. Our OPD services started in September 2013, and the inpatient department with 200 beds began the services in February 2014. The operation theatre block comprises of 5 OTs and ICUs and was commissioned in September 2014. The Institute hopes to be a major player in providing affordable state-of-the-art healthcare to the masses in the coming times. Sir, today is a memorable day for us as the Institute will add new facilities with the inauguration of the Central Laboratory Block, Blood Bank, PMR Block, an online inventory of blood bank, and computerized patient management system. The Central Laboratory at AIIMS Jodhpur comprises of pathology, microbiology, biochemistry, central molecular lab having equipment for conducting advanced testing and research. The center also lodges the National Lead Referral Center. The integrated common facility covers the entire spectrum of laboratory testing with highly advanced technology and is the only such facility currently existing in Rajasthan. This facility serves as a backbone of all investigations in the institution in an integrated, cost-effective, and efficient manner. The blood bank has a capacity to store up to 2,200 units of blood products. There is a facility to store components in a frozen state with a shelf life for up to 1 year. This caters to development of a facility which can meet sudden requirements in the event of mass casualty and disaster management. An online inventory is available of the available blood products is displayed along with the helpline numbers on the AIIMS Jodhpur website as an outreach program to other medical institutions of the region. This is the first dynamic inventory of blood products in the country. The Physical Medicine and Rehabilitation Department is the first among all new AIIMS to have a fully equipped state-of-the-art facilities. AIIMS Jodhpur is the only institute in Rajasthan to have such advanced technology for PMR. It offers comprehensive rehabilitation to all differently abled persons with pain, musculoskeletal disorders, neurological disorders, amputees, and geriatric patients. It aims to add life to ears instead of ears to life for all differently abled persons. The computerized patient management system, the CPMS as it is called, is a unique single-window software for managing all the activities of AIIMS Jodhpur. AIIMS Jodhpur is one of the first fully computerized medical institutions in the country. From its inception in the OPD at AIIMS Jodhpur, the OPD has been practically paperless. The patients have a unique registration number that is valid for a lifetime. The entire process from consultation to lab investigation and follow-up is done online. In keeping with the environment-friendly initiative, we are today starting the CPMS. It is a fully paperless system to manage the entire hospital services such as patient registration, consultation, investigations, admissions, operation, follow-up, and discharge. It also caters to ancillary services like ambulance, biomedical waste management, health statistics, etc. The uniqueness of this software is that the patient can register from the comfort of his home and come to the hospital for consultation and also print his reports at home. The doctors too can access all the information from anywhere in the world at a click of a button. AIIMS Jodhpur is grateful to Shri Nadda ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and the Government of Rajasthan for their continuing support and encouragement. We hope that with their continued support, we would also be making a mark in the healthcare delivery system in the country. The journey has just begun. Our faculty, the engineering staff, and the administrative staff have worked tirelessly to reach here. We have to consolidate as to what we have achieved and plan ahead for the future development of the Institute in terms of creation of centers of excellence in the field of cardiac sciences, neurosciences, oncology, organ transplantation, mother and child health, ophthalmology, etc. The addition of these super specialty facilities, along with housing for the faculty, resident, and students, would require at least an additional 200 to 300 acres of land. I request the Honorable Minister, Government of India, and the Government of Rajasthan to provide us with more land so that we can meet the expectations of the people and fulfill the purpose of setting up the Institute of national importance. We are also aware that people have great expectations from this institute, but we should remember that Rome was not built in a day.
building an institution is a very complex process. We are on the right path and hope that we will be able to make our mark soon like other premier institutions of the country. I, on behalf of the colleagues, would like to assure all that we shall never shirk our responsibility and our commitment to provide state-of-the-art healthcare, teaching and research facilities at AIIMS Jodhpur. We have enjoyed great love and affection from the people of the city of Jodhpur and from the people of Rajasthan, and would like to continue enjoying it and hope to have their continued support in the future. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। आज के इस अवसर पर प्रदेश के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन श्री NR बिश्नोई जी से ये निवेदन करते हैं कि वो फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत करें। श्री पुनाराम चौधरी जी जो जिला प्रमुख हैं आज हमारे साथ उपस्थित हैं। तालियों से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्वागत करें। श्री पब्बाराम जी बिश्नोई MLA फलौदी, श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी जो MLA हैं सूरसागर से, श्री बाबू सिंह जी राठौड़ MLA शेरगढ़, श्री कैलाश भंसाली जी MLA जोधपुर शहर और श्री देवेंद्र जोशी जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। Thank you, sir. Thank you, sir. May I please request Honorable Member of Parliament and Member Institute Body, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji to address the gathering. आज इस महत्वपूर्ण मौके पर भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी आदरणीय JP नड्डा साहब, राजस्थान बहुत सुखद संयोग है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भी यहाँ हैं। हम सब लोगों के लिए और भी सुखद संयोग है कि आज हमारे प्रभारी मंत्री राजस्थान के उद्योग मंत्री जो जोधपुर जिले से ही आते हैं वो भी हम सब लोगों के बीच में हैं। जोधपुर बहुत उर्वरा धरती है और यहाँ इतना सौभाग्यशाली है कि आज आदरणीय नारायण लाल जी पंचारिया साहब सांसद, पूर्व सांसद और अभी वूल बोर्ड के चेयरमैन जसवंत सिंह साहब, आदरणीय PP चौधरी साहब, आदरणीय डूडी साहब, चार सांसद यहाँ पे हैं। हमारे मेयर साहब मंच पे विराजे हैं। मैं आप सबका, इस सभागार में उपस्थित सारे MLA साहब का, जोधपुर के सारे डिग्नेटरीज का, जोधपुर के सारे ऑफिशियल्स का, जोधपुर में जितने शिक्षण संस्थान हैं, चाहे IIT की बात करूं, चाहे मैं पुलिस यूनिवर्सिटी की बात करूं, सबके वाइस चांसलर्स यहाँ हैं। इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सारे इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, पत्रकार मित्रों, क्योंकि समय की बहुत कमी है, आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी को यहाँ से बाद में एक कार्यक्रम और उसके बाद में जयपुर में एक कार्यक्रम और फिर रात में पार्टी की नेशनल मीटिंग में रहना है। इसलिए मैं सीधे अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर पधारे हैं। 2 मिनट में हमारा मार्गदर्शन दें। मैं मेरा और मनोज जी का सबसे क्षमा मांगते हुए कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा कट शॉर्ट करना चाहते हैं। सारे MP साहब जितने भी हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए कि इस कार्यक्रम को छोटा करना है। सीधा गजेंद्र सिंह साहब हमको 2 मिनट में अपनी स्वागत के रूप में बात करेंगे। आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और फिर हम सबको आदरणीय नड्डा साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. May I please request Honorable State Minister of Industries, NRI, State Enterprises Department, DMIC, Youth Affairs and Sports, Rajasthan, Shri Gajendra Singh Khemsar ji to address the gathering.
Honorable Central Minister Nadda Sahib, Honorable Rathod Sahib, our Health Minister, Gajendra Singh Ji Shekhawat, सांसद जोधपुर, माननीय राजौरिया जी, एमपी करौली, पीपी चौधरी साहब, एमपी पाली, माननीय ओझा जी, आर फर्स्ट सिटीजन ऑफ जोधपुर, मेयर, राज्यसभा एमपीज पंचारिया जी, डूडी जी, एक्स एमपी साहब 2 टर्म्स, माननीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डायरेक्टर एम्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डायस, हमारे विधायक महोदय पब्बा राम जी, माननीय सूर्यकांत जी, बाबू सिंह जी, बंसाली जी, हमारे जिला प्रमुख पूनाराम जी, शहर अध्यक्ष देवेंद्र जी जोशी, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ एम्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, interns, students, and ladies and gentlemen. Today it's our honor that Manya Nadda Sahab has come all the way to Jodhpur to inaugurate certain wings of AIIMS and to take it forward. Jodhpur is the second largest city of of Rajasthan, and it is the gateway to Western Rajasthan. Infrastructure is the key to any fast-growing city. We have canal water, we have a road infrastructure, we are trying to get industries. The famous Delhi-Mumbai Industrial Corridor, which is dedicated to high-speed freight trains between Mumbai and Delhi, will run very close to Jodhpur. We have all tried very hard to work, and we are on the threshold of increasing from 2 flights a day to Jodhpur to a potential of 8 flights a day to Jodhpur in the very near future, which will be of great benefit to Jodhpur. But I feel that medical health is one of the most important need for such a large growing city. Today in the morning, Honorable Health Minister Sahab, he inaugurated 7 different machines and wings in our divisional headquarter hospital in Jodhpur, which goes to show the commitment of our government, of our Honorable Chief Minister, to keep Jodhpur in pace with development. And the 2 departments which will look after the health of our people one is in an indirect way sports, which is also my department. And we are very happy that such a large, world-known institute as AIIMS has started now firing on all cylinders, and to the benefit of a large growing population. And I wish the fraternity of AIIMS, all the doctors, in their commitment to serve the people, to cure the ill, my good wishes are with all of you. And once again, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी गर्मी में आप दिल्ली से यहाँ पधारे, जोधपुर के बारे में आपने सोचा और आपने जो इनॉग्रेशंस किए, हमें पूरी आशा है कि क्योंकि जोधपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है राजस्थान का, आप कृपया करके एम्स को, खाली एम्स को ही नहीं, हमारे राज्य के मेडिकल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको आप हमें केंद्र से आप मदद देंगे,
और जो हमारी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि राजस्थान को एक बीमारू प्रदेश से एक एडवांस स्टेट इंडिया का बनाने की जो कोशिश कर रही हैं, उसमें आपका भी योगदान रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग us all and giving us the honors of being on the podium, and I wish everybody all the best. धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir, for your nice words. May I please request Honorable Minister of Medical and Health, Ayurveda and Indian Medical Methods, Medical and Health Services, ESI, Parliamentary Affairs, Medical Education, Law and Legal Affairs, Legal Consultancy Office, Parliamentary Affairs, Election and Waqf, Rajasthan, Shri Rajendra Singh Rathod ji to address the gathering. आज के गरिमापूर्ण समारोह के मुख्य आकर्षक देश के गतिशील चिकित्सा मंत्री और हमारे राज्य के प्रभारी सम्माननीय नड्डा साहब, इस जिले के प्रभारी मंत्री, राज्य के उद्योगों को एक नई गति देने वाले सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, जोधपुर के लोक लाडले सांसद जिनके मन में हमेशा इस जोधपुर को द्रुत गति से विकास की दृष्टि से आगे ले जाने की तमन्ना छुपी रहती है, ऐसे छोटे भाई गजेंद्र सिंह जी, सांसद मनोज जी, सम्मान्य पचारिया साहब, डूडी साहब, बिश्नोई जी, इस संस्थान के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर संजीव जी, सभागृह में उपस्थित जोधपुर संभाग के सम्मानीय विधायकगण, एम्स जैसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़े हुए चिकित्सक वृंद और जोधपुर के सम्राट नागरिक वृंद, आज राजस्थान के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक बहुत पुराना सपना जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शासनकाल के अंदर जोधपुर वासियों सहित पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना, और स्थापना के बाद अब मुझे आशा लगी है कि मूर्त रूप लेगा। आज इस चिकित्सा संस्थान में माननीय नड्डा साहब ने सेंट्रल लैब, ब्लड बैंक और मेडिकल रिहेबिलिटेशन, फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन के साथ साथ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है। मैं समझता हूं कि हमारा सबका वो सपना कि इस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर, राज्य के अंदर जो जटिल रोग से ग्रसित हमारे आमजन है, उन्हें यहाँ विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मैं इस अवसर पर पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज तक जो आईपीडी और ओपीडी के अंदर जिस प्रकार की गतिशीलता इस एम्स में होनी चाहिए थी और उसको मूर्त रूप देने में पिछली जब से ये सरकार आई है, सम्मान्य मोदी जी की सरकार, आपने पर्याप्त बजट भी दिया। जिसा मुझे बताया गया कि लगभग 160 करोड़ रुपए का बजट आपने इस एम्स को दिया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अब वो दिन दूर नहीं जब देश के अन्य मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर उसी सेवा और उसी उत्कृष्टता के साथ जोधपुर का ये एम्स भी सम्मिलित होगा। मैं इस अवसर पर नड्डा साहब एक निवेदन और करना चाहूँगा। मुझे वो समय याद है जब इस एम्स का शिलान्यास हो रहा था। एक नाम को लेकर, इसके नामांकन को लेकर कई तरह की बात चली थी। मीराबाई यहाँ के जनपद में बसी है, अगर इसका नामांकन आप भक्ति शिरोमणि मीराबाई के नाम से करने की कृपा करें तो शायद हमें राजस्थानियों को अच्छा लगेगा। मैं इस अवसर पर आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं। कल ही आप जब पूरे देश के अंदर टीकाकरण के मिशन इंद्रधनुष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे तो आपके मन की और आपके चेहरे से मुझे झलक नजर आ रही थी कि आप
इस पूरे देश के स्वास्थ्य की नब्ज को समझते हुए उसको ठीक करने के लिए एक नई दिशा की ओर इन सेवाओं को ले जा रहे हैं। आप जब यहाँ आए हैं तो आपसे इतना ही प्रार्थना करूंगा कि केंद्र सरकार की योजना PMSSY में हमारे जोधपुर के मेडिकल कॉलेज को इस बार कुछ और सहायता मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारा एक प्रोजेक्ट वीरोलॉजी की लैब के लिए आपके यहाँ लंबित है, उसमें भी आपका सहयोग मिलेगा। और मैं तो बहुत वर्षों से आपसे परिचित हूँ और आपकी संवेदनशीलता को जानता हूँ। मैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के रूप में इस ऐतिहासिक मरु प्रदेश में आपके आगमन पर आपका स्वागत करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपका संरक्षण में यहाँ राजस्थान की सेवाएं भी आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. It is with pleasure that we invite Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Shri Jagat Prakash Nadda ji, to inaugurate the computerized patient management system. Honorable Minister and dignitaries, we now present a brief overview of the computerized patient management system installed at AIIMS Jodhpur. First step for all patients is registration. The form being used at AIIMS Jodhpur has been issued by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and records patient demographic information in great detail. For continuity, registration is done only once in the person's lifetime, and all their medical information is linked to the barcoded registration card. Once registered, the patient can avail the services of the institution like OPD consultation. OPD tickets can be printed for any consultant of any department. Duplicate tickets can be issued in case of loss. Through their OPD panel, doctors record the patient's diagnosis and clinical details, which leads to standardization of the recorded information. All the investigations being performed in the institution are also ordered through the doctor's OPD panel and medication prescribed to the patient as required. All of this information is stored in the electronic medical record in chronological order to be accessed subsequently by authorized users. Ordering of investigations and prescription of drugs takes place through only a few mouse clicks. This information is automatically transmitted to the investigating department or the pharmacy as the case may be. Inpatient admission is processed through the central ward administration. All the admission related information such as date of admission, expected date of discharge, etc. are accessible at the central admissions counter. Bed occupancy of the entire hospital is displayed in the form of ward charts showing empty and occupied beds. The name of the patient, their doctor and diagnosis are also displayed on the occupied bed. In addition, all clinicians have access to their on-bed list, which gives additional information helpful for patient management. The previous OPD visits can be seen, and most importantly, the red flag of the adverse substance reaction previously experienced by the patient. This information is vital for preventing accidental wrong prescription. All types of forensic documents related to medico-legal aspects of the patients are also present in the electronic record. For example, the injury report form, which is seen here.
Hospital services like biomedical waste and CSSD are also managed through the CPMS. Each surgeon has the facility for creating dedicated instrument sets for different operative procedures. This information is stored in the CSSD panel, and when that operation is scheduled, the appropriate instrument set is dispatched. Listing of patients for surgery is also done through the same software. Most importantly, these lists are visible to all the personnel associated with that procedure, so that availability of blood from the blood bank, anesthesia fitness, and availability of ICU beds, etc., is displayed on the operating list itself. The CPMS also supports online patient referral, which requires only a few mouse clicks for selecting the department and doctor. All the patient information in the electronic medical record is automatically transferred to the second doctor by the software, and a reference calendar keeps a record of sent and received references. In the electronic medical record, the patient's name is a link to the complete information from which previous investigations, drug prescription, and other treatment can be accessed by the authorized user. Honorable Minister and dignitaries, apart from these, the CPMS has two unique features currently not found in any hospital information system. The first is a real-time display of the inventory of the institution's blood bank in accordance with the directions of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. This chart, accessed through the AIIMS website, displays the minute-to-minute status of blood product availability. There is also a facility of ordering the blood products online through an online form, and a contact helpline has been given in case of difficulty. The other unique feature is the management of imaging investigations by the software, which uses the principle of vendor-neutral archiving, the latest concept ahead of the PACS system. In VNA, the images remain attached to the patient's medical record in the original non-proprietary format and can be readily transmitted to other authorized users in the same hospital or different hospitals anywhere in the world. This can be done without any change or modification. AIIMS Jodhpur is possibly the first institution in the country to use this latest technology. I thank you all very much for your kind attention. Thank you. May we please request Honorable Union Minister, Health and Family Welfare, Shri Jagat Prakash Nadda ji, to kindly address the audience. Sir, please. आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लंबे समय तक जिनके साथ हमने काम किया, गजेंद्र सिंह जी उद्योग मंत्री, हमारे वूल बोर्ड के चेयरमैन श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी, श्री पीपी चौधरी जी, आदरणीय रामनारायण डूडी जी, हमारे राज्यसभा में हमारे सहयोगी नारायण पंचारिया जी, जो प्रदेश के महामंत्री भी हैं और राज्यसभा में मेरे साथ सहयोगी और सदस्य, डॉक्टर मनोज राजरिया जी, हमारे यहाँ एम्स के गवर्निंग बॉडी के सदस्य, आपके यहाँ के बड़े लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, घनश्याम जी महापौर, हमारे यहाँ पर सभी विधायकगण, डायरेक्टर एम्स जोधपुर डॉक्टर संजीव मिश्रा, ज़िलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए डिग्निटरीज़
आए हुए सभी मेहमान, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और स्टाफ के सभी सदस्यगण, मेरा आज ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे एम्स जोधपुर आने का सौभाग्य मिला। गजेंद्र सिंह सोलंकी जी और मनोज जी दोनों का मैं धन्यवादी हूँ, और हमारे सांसद दोनों डूडी जी और पंचारिया जी, इनका बड़ा विशेष आग्रह था। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, और गजेंद्र जी तो कहते थे कि मैं धरने पर ही बैठ जाऊँगा जब तक मैं नहीं आता। तो इनकी प्रेरणा मुझे लेके आई, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आया तो इसलिए था कि मैं कुछ चीज़ों की जानकारी लूँगा, और जानकारी लेने के साथ साथ जो उसमें करने की ज़रूरत होगी उसको मैं करूँगा। लेकिन आयोजकों ने यहाँ पर मेरे द्वारा जो इन लोगों ने काम किया है उसका शुभारंभ करने का कार्यक्रम भी बना लिया, और आज मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जहाँ मुझे ब्लड बैंक का, सेंट्रल लेबॉरेटरी का, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन सेंटर का, और सबसे बड़ा जो सेंट्रलाइज्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस 4 चीज़ों का जो उद्घाटन करने का, श्री गणेश करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवादी हूँ। और ये सारी जो सुविधाएं हैं वह जोधपुर के एम्स में जनता को समर्पित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आप सबको बधाई भी कि ये बहुत उपयोगी कदम रहेगा और आगे चल कर के इसकी सुविधाएं हम ले सकेंगे। विषय बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ विषयों के बारे में चर्चा करते हुए जोधपुर एम्स की चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य के जगत के दृष्टि से हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार के रूप में आगे बढ़ती रही है, और समय समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है उस चीज़ को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। एक समय था जब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के साथ लड़ रहे थे। हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कहीं पोलियो के साथ लड़ रहे थे, डिप्थीरिया के साथ लड़ रहे थे, वूपिंग कफ के साथ लड़ रहे थे, ट्यूबरक्लोसिस के साथ, लेप्रेसी के साथ। इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ हमारा निरंतर एक इंटरैक्शन था। समय बढ़ा, एफ्लुएंस बढ़ी, लोगों का लाइफस्टाइल बदला, और उससे हम कम्युनिकेबल डिजीज पर की लड़ाई तो लड़ते लड़ते हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी हमारा बर्डन बढ़ गया। इसलिए जहां हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस पर, इन सब चीज़ों पर रोकथाम पर प्रयास करके उसमें सफलता हासिल की, वहीं हमारा बर्डन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर बढ़ गया। और अब हम कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, और जिसका इलाज भी बड़ा महंगा हो गया है, इसका भी प्रेशर बढ़ गया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य नीति में हमने जहां कम्युनिकेबल डिजीजेस को अटेंड करने का, एड्रेस करने का प्रयास किया, वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी एड्रेस करने के दृष्टि से टर्शियरी सेंटर्स को डेवलप करने का प्रयास किया। अब मैं यहां पर किसी दृष्टि से कोई राजनीतिक बातचीत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सन 56 में एम्स का कॉन्सेप्ट रखा था, उसको आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया तो उस सपने को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरा। और 6 एम्स, एक नहीं, एक साथ बहुत कम अवधि तक काम करने का मौका मिला, लेकिन उस 6 साल में 6 एम्स खोले। जोधपुर, भुवनेश्वर, रायपुर, भोपाल, पटना और ऋषिकेश, ये पहले फेज में खोले। अवधि लंबी गुजर गई, शुरू में काम ढीला रहा,
सरकारें बदल गई, बाद में इसमें गति पकड़ी, और मुझे खुशी है कि जनता को समर्पित सबसे पहले जोधपुर एम्स हुआ, इस बात की भी मुझे खुशी है। और यही नहीं रुकने की बात की, ये 9 साल पश्चात जब सरकार बदली और पिछले साल जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ा, तो उस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसका ये विचार है और जिसको वो आगे बढ़ा रही है कि हर प्रदेश में एक एम्स ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा, एक एम्स खुलेगा। इस बात को पूरा किया। और पिछले साल आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, पूर्वांचल में ऐसे 4 एम्स खोले गए। और इस वर्ष हमारे यहां जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु, असम और एक पटना में एम्स है, एक और एम्स वहां खोलने का, ऐसे 5 एम्स का निर्णय लेकर के आगे बढ़े। अगर आप देखेंगे तो यह 16 इंस्टीट्यूशन, 16 एम्स इंस्टीट्यूशंस, it has been done under the leadership of Shriman Atal Bihari Vajpayee ji and Narendra Modi ji. This is what we have to acknowledge and understand. और हम इसको एक लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा उसको हम करने के लिए कृत संकल्पित हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको हम पूरा करेंगे। जहां तक सवाल है अपने विकास की दृष्टि से, जोधपुर के कुछ विषय हमारे सामने आए हैं। कुछ इश्यूज है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ इश्यूज है फैकल्टी को लेकर के, कुछ इश्यूज है कि डेवलपमेंट की दृष्टि से जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमको मदद की आवश्यकता है। मैं आपको यहां पर विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने पीछे भी डॉक्टर संजीव मिश्रा जी के साथ पूरा प्रेजेंटेशन लिया था और आज भी मैं पूरे स्टाफ के साथ बैठा था। कोई भी बॉटलनेक्स रहने नहीं दिया जाएगा और तीव्र गति से सारे के सारे कामों को पूरा किया जाएगा, इस बात का विश्वास है। आई एम पर्सनली मॉनिटरिंग एवरी एम्स, क्योंकि अब यह स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा आयाम है। 16 इंस्टीट्यूशंस एम को मैनेज करना, उनकी सारी डिटेल्स को वर्कआउट करना, यह एक स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का, प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आयाम है। और इस पर पर्सनल मॉनिटर करके, हर छोटी बड़ी बात को चिंता करके इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं यहां पर डॉक्टर संजीव मिश्रा जी, डायरेक्टर साहब, और उनका सहयोग जो शेखावत जी और राजौरिया जी का रहता है, उसके साथ सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस टीम स्पिरिट से उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने की कोशिश की है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट। यू सी, इट इज इजी टू डेवलप ए हार्डवेयर। बिल्डिंगें खड़ी करना आसान है, सिस्टम्स खड़ा करना आसान है, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले लोगों के माध्यम से, उस मिशन की दृष्टि से, उस इंस्टीट्यूशन के नाम को खड़ा करना, यह बहुत बड़ी बात होती है, जिसके आप जोधपुर एम्स कर रहा है। इसलिए आई एम हैप्पी टू नोट दैट जोधपुर एम्स हैज गॉट हार्डवेयर ऑल्सो and got a very good software also. For that I would like to congratulate the staff, the faculty, the meeting. ये जो सेंट्रलाइज्ड पेशेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स है। इसके लिए मैं विशेष बधाई दूंगा और मैं आप सबसे कहूंगा कि आजकल में कभी आकर के अपना भी यहां कार्ड बना लीजिए। आपका सारे का सारा जन्मपत्री हेल्थ की आपकी हमेशा तैयार रहेगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
डिजिटल वर्ल्ड जो मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम कहते हैं कि अपना टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से हेल्थ की सेवा को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसका जीता जागता प्रमाण है सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्यक्ति की एज, वो कब कब हॉस्पिटल गया, कब उसका सीटी स्कैन हुआ, कब एमआरआई हुआ कि नहीं हुआ, ब्लड ग्रुप कब कब टेस्ट हुआ, डायबिटीज कब कब टेस्ट हुआ, क्या कब कितना निकला, ये सारी जन्म पत्री उसकी हमेशा यहां पर अवेलेबल रहेगी एक बार कोड पर, सिर्फ उस पर नजर डालने से। किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम देख सकते हैं। और उसी दृष्टि से जो एक बहुत अच्छा काम हुआ है वो ब्लड बैंक का उद्घाटन तो हमने किया, लेकिन उसकी जो विशेष बात है कि कंप्लीट ब्लड बैंक स्टेटस इज इलेक्ट्रॉनिक, इज डिजिटल। इसमें सारे ब्लड बैंक में जो भी हमारे डोनर्स हैं वो उनकी क्या क्या एड्रेस है, कौन सा उनका ब्लड ग्रुप है, कब उन्होंने ब्लड दिया, कब वो दे सकते हैं, देने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहां कहां उसका इस्तेमाल हो सकता है, किस जगह से उसको जोड़ा जा सकता है। और मुझे खुशी है कि ये जोधपुर के सभी हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करूंगा कि इसमें जो कुछ भी खर्च होता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। स्टेट के साथ जोड़ देना भी आवश्यक होगा, इस बात के लिए भी हमको उसमें प्रयास करना चाहिए। ये बातें बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये जीवन को कितनी सुरक्षा प्रदान करती हैं, इसको हमको समझने की जरूरत है। कौन सा ब्लड कहां, किसका प्लाज्मा कहां मिल सकता है, कहां उसका अवेलेबिलिटी है, कैसे किसकी जान बचाई जा सकती है विथ लेस ब्लड लॉस, और हम उसकी जान कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप सब ने किया है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये सिर्फ ब्लड बैंक का ही उद्घाटन नहीं है, ये ब्लड बैंक का मॉडर्नाइज्ड डिजिटलाइज्ड ब्लड बैंक का उद्घाटन है। इसके लिए भी मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। मैं विषय बहुत हो सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा कि एक यहाँ के नामकरण की बात आई है, उसको भी मैं ज़रूर देखूंगा, और उसको भी जो उसमें करने वाली बात होगी उसको हम करके पूरा करेंगे। मैं आपके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की दृष्टि से हम इंद्रधनुष का कार्यक्रम चला रहे हैं, 7 तरीके के टीकाकरण दे रहे हैं, और 7 तरीके के टीकाकरण में डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, अब उसमें हम जोड़ रहे हैं रोटा वायरस, जेई एडल्ट्स, एईएस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, इन सबको हम उसमें जोड़ रहे हैं। रोटा वायरस को जोड़ रहे हैं, मीजल्स रुबेला को जोड़ रहे हैं, आईपीवी इंजेक्शंस को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से यह देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, जिसको हमको समझना चाहिए। हम कई बार अपनी चीजों को समझ नहीं पाते। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग ने जितना काम किया है उसको ठीक ढंग से जनता के समक्ष रखना यह बहुत जरूरी है। मैं अभी आप लोगों के जिसको डॉक्टर संजीव मिश्रा कह रहे थे, मुझे अभी सौभाग्य मिला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जाने का। आपको जानकर के खुशी होगी कि इस वर्ष का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष भारत रहा, और मुझे उसकी अध्यक्षता करने का 192 नेशंस की अध्यक्षता करने का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में मौका मिला। बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। जब हम चर्चा करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमको किसी देश के साथ आप तुलना ना करें। 1.25 बिलियन का देश, 1.25 अरब का देश, 1.25 अरब देश की हेल्थ की चिंता, आप कोई 1.5 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसी जनसंख्या के साथ हमारा कंपैरिजन करोगे, देयर इज नो मैच, देयर इज नो मैच। यू सी द क्वांटम, यू सी द क्वांटम। और हर बच्चे को मुफ्त उसको 7 तरीके के +4 यानी 11 तरीके के टीकाकरण कराना, और उसमें से 90 लाख अगर बच्चे बच जाएं तो उनके घर घर जाकर के टीका करा करके 100% टीकाकरण कराना। यह कोई छोटी बात है। मुझसे
टेलीविजन वाले आए, उन्होंने कहा कि क्यूबा देश के साथ, मैंने कहा आप क्या कंपेयर कर रहे हो? क्यूबा इज ए कम्युनिस्ट कंट्री, डॉक्टरों को बोल रखा है कि अपने मोहल्ले में 250 परिवारों को देखना एसेंशियल है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यहां पर पढ़ने वाले डॉक्टर यही की सेवा नहीं कर रहे हैं, लंदन की भी कर रहे हैं, अमेरिका की भी चिंता कर रहे हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ, हाउ कैन यू कंपेयर अस? इट्स अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो हम टीकाकरण कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि हम अपने बातों को, अपनी जनता को, अपने भाइयों को बता नहीं पा रहे। इतना बड़ा सिस्टम, आप ये इंजेक्शन को कोल्ड चेन के माध्यम से, रेफ्रिजरेशन में गांव के आशा वर्कर के माध्यम से उस बच्चे तक पहुंचाना, दूर दराज इलाके में पहुंचाना, कहां लाहौल स्पीति, कहां बस्तर, कहां केरल, कहां नॉर्थ ईस्ट, क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच आवर पीपल आर डूइंग इट? हमको उसको अच्छी तरीके से, जो हमारे लोगों ने काम किया है स्वास्थ्य के जगत में, उसको हमको अच्छे ढंग से रखने की जरूरत है। आप एम्स की बात कर रहे हैं, 16 इंस्टीट्यूशंस आज डेवलप हो रही हैं, एक एक इंस्टीट्यूशन हजार करोड़ की होंगी। ये तो उसके बंदे में लगेगा, इसके बाद इसका मैनेजमेंट, इसका एक्सपेंडिचर, ये सब भारत के लोगों के लिए करने के लिए आज की केंद्र सरकार समर्पित है, और हर प्रदेश में करने के लिए समर्पित है। समझने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य विभाग ने किया है। हम सब लोग, अच्छा, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, हम सेंटर से बोलते हैं, करने वाले स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनके साथ तालमेल रख करके काम करना पड़ता है, और उसके बावजूद हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशन इज गोइंग अहेड, इसलिए देयर कैन बी नो मैच, वी आर वर्किंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आगे और अच्छा करने की जरूरत होगी, उसको भी हम पूरा करेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। मैं जेनेवा में अभी एक साउथ सेंटर, डेवलपिंग कंट्रीज का एक स्टडी सेंटर है, जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा कि उनके रिसर्च पेपर्स क्या बताते हैं? उनके रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि अगर इंडिया ने दवाइयां नहीं बनाई होती और मैन्युफैक्चर नहीं किया होता तो डेवलपिंग नेशंस के मुल्क की जनसंख्या आधी खत्म हो जानी थी। कॉस्ट इफेक्टिव और चीप मेडिसिन, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो और हो, अगर भारत के लोगों ने और मैन्युफैक्चरर्स ने ये मेडिसिन बनाई है तो जाकर के डेवलपिंग नेशंस की जनसंख्या बच सकी है। ये उस स्टडीज में से निकल करके आता है। इसलिए मित्रों, हम सब लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। यह जोधपुर इंस्टीट्यूशन सिर्फ जोधपुर के लिए नहीं, ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये पश्चिम भारत के लिए एक अच्छी मिसाल बनेगा, ये अच्छा सेंटर बनेगा, और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आप सब ने आज इसको, इस इंस्टीट्यूशन के साथ अपने आप को जोड़ा है, और मैं समझता हूं कि एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और हम उसके लिए हमेशा लगे रहेंगे। लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ये बहुत आमंत्रित की हुई, अपने को हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए हमको लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में चिंता करनी चाहिए। 21 जून को योग दिवस है। खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में इसको कहा, और 177 देशों ने इसकी को स्पॉन्सरशिप की, और एक प्रस्ताव में वर्ल्ड योगा डे 21 जून बन गया। हमको योग को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। 21 तारीख को कोई अपने घर में ना रहे, सुबह सुबह योग जहां जहां हो रहा है वहां योगा में भाग ले, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और हेल्थ वर्कर तो एक भी घर पे नहीं रहना चाहिए, ये उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो लीडर के रूप में आगे बढ़ करके वो योग दिवस में भाग ले। ये होलिस्टिक अप्रोच है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आज हम प्रयास कर रहे हैं कि योग से डायबिटीज कैसे घट सकती है, इसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट करने के लिए हमने प्रयास किया है कि लगभग 2 लाख लोगों को हम बिफोर योगा एंड आफ्टर अ वीक्स योगा, व्हाट इज द ब्लड डिफरेंस, उसके ब्लड शुगर के अकाउंट में कितना अंतर आता है, इसको हम डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीजेस है, कैंसर के बारे में स्पष्ट हो चुका है कि इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज।
Sedentary life is one of the reasons. Hypertension is a lifestyle disease. हम खुद आमंत्रित करते हैं अपने इस शरीर को, हम भोजन हमारे लिए है, भोजन हमको खा ले इसके लिए नहीं है। तो मैं वैसे कह रहा हूं, ये विषय हमको समझना चाहिए। हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं, तो हमको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। और लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज तो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। मैं हेल्थ वर्कर से तो हमेशा निवेदन करता हूं, देखिए स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से मैंने भी आपसे बहुत सी बातें स्वास्थ्य की हैं। हेल्थ वर्कर, डॉक्टर जहां भी जाए वो हेल्थ की जरूर बात करे और लोगों को समझाए, यह भी उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब लोग इसमें जुड़े, योगा दिवस में जुड़े और वर्ल्ड योगा दिवस में भाग लें, अपने जीवन में उसको जोड़ें। सिर्फ 21 ही तारीख नहीं, हर दिन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आप बीमार होंगे तो हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम स्वस्थ रहें इसकी चिंता करना, यह पहली बात है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में हम लोगों को जोर देना चाहिए, और क्योर के लिए तो हम हैं ही, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप प्रिवेंटेड रहें इसकी हमको जरूरत है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर को आगे बढ़ाने में हम लगे रहेंगे। ये जो सेंट्रल पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है और जिस कार्ड के बारे में अभी चर्चा की थी संजीव मिश्रा साहब ने, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नड्डा साहब से कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी को उनका कार्ड और गजेंद्र सिंह जी खीमसर को उनका लाइफ टाइम कार्ड जो है वो अभी इसी अवसर पर अभी बनाया है। और मैंने संजीव मिश्रा साहब से कहा है कि हमारे सारे एमएलए साहिबान का भी ऐसे कार्ड बनवा के और इनको भी एक कार्यक्रम करते हुए इनके घर पे हम सब पहुंचाएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हाँ हाँ, उसके लिए भाई साहब योगा करना पड़ेगा सबको 21 जून से शुरू करके। जी, और एम्स में आने की जरूरत ना पड़े। Thank you, sir, for such inspiring and encouraging, promising words. May I request Dr. Sanjeev Mishra, sir, to present a memento to Shri Jagat Prakash Nadda ji. Thank you, sir. May I request you to please present a memento to Shri Rajendra Singh Rathore ji. Thank you, sir. I request you to present a memento to Shri Gajendra Singh Khemsar ji. Thank you, sir. Please present a memento to Shri Narayan Lal Pancharya ji. Thank you, sir. May I please request you to present a memento to Shri P.P. Chaudhary ji. May we request, sir, to present a memento to Shri Gajendra Singh Shekhawat ji. Yes, sir. Thank you, sir. May I request, sir, to present a memento to Shri Manoj Rajoria ji. Thank you, sir. May I request, sir, to present a memento to Shri Ram Narayan Dudi ji. Ram Narayan Dudi ji. Thank you, sir. Dhanyavad, sir. May I request, sir, to kindly give a token of love to Shri Jaswant Singh Bishnoi ji. Mike, Madam, Mike. 1 minute. 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 1
सर एक घनश्याम ओझा जी और घनश्याम ठीक है हेलो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू श्री घनश्याम ओझा जी वैसे मैं यहाँ आया, मैंने जोधपुर के बारे में चर्चा की, लेकिन अब राठौर साहब यहाँ बैठे हैं और राजस्थान की चर्चा ना करूँ तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपके सामने यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उदयपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयपुर, इनको 150 crores each for upgradation. आगे करते हैं। और स्टेट कैंसर सेंटर, इसको 45 करोड़ स्टेट कैंसर सेंटर जयपुर के लिए, और टर्शरी केयर सेंटर के लिए बीकानेर और झालावाड़, इसके लिए 20-20 करोड़, और राजस्थान को 10 ट्रॉमा सेंटर्स, ये हमने देने का निर्णय किया। मैंने छोड़ दिया है भाई साहब आपने। Vote of thanks. Vote of thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. May I request Professor Shilajit Bhattacharya to propose vote of thanks. Dignitaries on the dais, dignitaries in the audience, invited guests, members of the press, faculty members, administrative staff of AIIMS Jodhpur, and dear students. I consider it an onerous task to deliver the vote of thanks on this momentous occasion, which has been graced by the President of our institute body, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Shri J.P. Nadda, sir. Sir, it is a matter of great pride for all of us to have you in our midst. Your presence on this occasion has infused us to strive harder for the future progress of our institute. On behalf of the entire AIIMS Jodhpur family, I extend you many thanks for your visit. We are also honored to have Shri Rajendra Singh Rathod, Honorable Health Minister, Government of Rajasthan, Shri Gajendra Singh Khimsar, Honorable Minister for Industry, Government of Rajasthan, with us today. Sir, on behalf of all of us at AIIMS Jodhpur, I extend a gratitude and thanks for your visit. We also have two honorable members of parliament, both of who are members of our institute body. Many of us had very warm interactions in the past with Shri Gajendra Singh Shekhawat and Dr. Manoj Rajoria. We are very delighted to have the two of you back with us, and I extend many thanks to you for your visit. Also with us are honorary members of parliament, Shri Ram Narayan Dudi, Shri Narayan Ran Pancharia, Shri P.P. Chaudhary, and Shri Jaswant Singh Bishnoi, to all of whom I extend my thanks for their valuable visit to our institute. I also extend my thanks to Shri Sunil Sharma, Joint Secretary, PM SSY, Ministry of Health and Family Welfare, to have graced this occasion, sir. I extend my thanks to all the dignitaries, both in civil and uniformed services, in the audience for their gracious presence. Many thanks to the members of the press, from whom there has always been an overwhelming response. For all the hard work put in by the engineering and the administrative team who have toiled in the background to make the commissioning of the projects and facilities, many thanks. I extend heartfelt thanks to our dear students who have looked forward to the development of the facilities for betterment of their learning. Our dynamic director, Professor Sanjeev Mishra, needs special thanks for his skills to be able to hide our weaknesses and harness our strengths. Thank you one and all for gracing this occasion and making it momentous. थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट राजस्थान स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों द्वारा रात्रि 8:15 बजे प्रसारित की जाएगी। नाउ वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस टू राइज फॉर द नेशनल एंथम।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। We request the guests and the dignitaries on the dais to please join for a lunch in the examination hall in the Medical College complex, and the faculty members to facilitate in the process. Thank you for being with us today. Namaskar.